Good morning students. In today's video lesson we are doing another application of Biot-Savart's law, that is to find the magnetic field at the center of circular coil carrying current. ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक circular coil होगी. That circular coil is carrying some current and you need to find out the magnetic field at the center of that circular coil. Okay, so let's get started. First of all we draw a circular coil विच इज ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. ठीक है, आपने प्लेन ऑफ बोर्ड में एक सर्कुलर कॉइल को क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है ऐसे. ठीक है, लेट दैट सर्कुलर कॉइल इज कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर उस सर्कुलर कॉइल में ऐसे करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ठीक है, you need to find out the magnetic field at the center of the circular coil. Let the center of circular coil is denoted by O and R be the radius of the circular coil. ठीक है, इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस आपने R के बराबर मान लिया. ठीक है, तो आपको बायो-सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर के ऊपर. ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट. ठीक है, तो आपने इस पॉइंट के अराउंड, जहाँ ये पॉइंट रेडियस वेक्टर को टच कर रहा है, इस पॉइंट के अराउंड आपने क्या कर दिया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट वेक्टर कंसिडर कर लिया. लेट वी से एट दिस पॉइंट वी कंसिडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर. ठीक है, और उस स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर को हम लिखते हैं IDL वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर इज गिवन बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करके, टेंजेंट ड्रॉ करके हम बताते हैं उसकी डायरेक्शन. तो ये आपके पास टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने. ठीक है, सो दिस रेड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर. R represent the position vector या the position vector of observation point from the small current element vector. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, according to बायो-सावर्ट्स law the small amount of magnetic field induction at point O पॉइंट के ऊपर magnetic field induction होगी due to this small current element vector is equal to mu naught over 4 pi IDL sin theta divided by R square. Okay, this is the small amount of magnetic field at the center of the circular coil at a distance R from the current element vector. Okay, now you know very well that this theta, this sin theta is angle between small current element vector and position vector. Since by looking at the diagram we can easily calculate that the direction of current element vector is along tangent and position vector is horizontally, that is along radius vector. So the angle between current element vector and the position vector would be of 90 degree. In that case your sin 90 degree will become 0. So sorry, sin 90 degree will become 1. So the magnetic field induction at point O would be equal to mu naught over 4 pi as it is, IDL as it is, divided by R square as it is. Instead of sin theta you may have put a 1 is equal to 1. आपने 1 पुट कर दिया है यहाँ पे. ठीक है, ओके, तो ये छोटी सी ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसके किस पॉइंट पे आई है, P पॉइंट के ऊपर आई है. ठीक है, to calculate first of all what would be the direction of this small magnetic field induction at P point. So to give the direction of magnetic field induction at any point, first of all we use in the Biot-Savart's law we use right hand palm rule, according to which if the current element vector shows the direction or the thumb will give the direction of current in that current element vector. तो इस current element vector के अंदर direction of current है वो thumb बता रहा है. टिप ऑफ फिंगर्स, राइट हैंड की टिप ऑफ फिंगर उस साइड होनी चाहिए जिस साइड मैग्नेटिक, जिस साइड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और उन फिंगर्स को मैं आधा कर्ल कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड. इट मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आई है इस छोटे से करंट एलिमेंट वेक्टर की वजह से इसकी डायरेक्शन ओ पॉइंट पे आई है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, मतलब क्रॉस आई है. क्लियर है, ओके. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई एज इट इज IDL R स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, डायरेक्शन आपने बता दी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, लेकिन ये तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस छोटे से करंट एलिमेंट वेक्टर की वजह से आई है. ठीक है, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर लूप. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर लूप वुड बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ पॉइंट। ठीक है, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस पूरे सर्कुलर लूप को हम छोटे छोटे करंट एलिमेंट वेक्टर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उन करंट एलिमेंट वेक्टर्स के ऊपर हम सबके ऊपर पाम रूल लगाते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो कंप्लीट किसी भी जगह के ऊपर पाम रूल लगाओगे आप लोग तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड आएगी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और रूल भी होता है जिसको आप 10th क्लास में पढ़ते थे, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इफ करंट फ्लोइंग इन ए सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप के अंदर इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी गिवन बाय थंब। ठीक है, तो थंब हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। और अगर इसी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड या टुवर्ड्स द कैमरा। क्लियर है, तो आपने फाइंड आउट कर दी। दो वेज से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यू विल इंटीग्रेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई एज इट इज लिख दिया आपने। ओके, आई एज इट इज लिख दिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑल दीज पैरामीटर्स आर कांस्टेंट फॉर आइडियल। ठीक है, आइडियल के लिए सारे कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन विल शिफ्टेड ओवर टू डीएल ओनली। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ इस डीएल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट वी कॉल दिस इक्वेशन टू बी द फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं आपको। क्लियर, ठीक है, तो उस केस के अंदर हो क्या जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओ पॉइंट ड्यू टू द कंप्लीट सर्कुलर लूप। ठीक है, कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओ पॉइंट पे आ जाएगा म्यू नोट आई एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज इंटू डीएल। क्या है, इस सर्कुलर लूप का कोई भी छोटा सा एलिमेंट है डीएल, अगर आप इसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा circumference of the circular loop। ठीक है, तो on integrating the dl element of the circular loop we will get the circumference of the circular loop that is equal to 2 pi r। ये आपके पास circumference आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक तरीका इसका लिखने का ये है कि r से एक r कैंसिल कर दो, आप पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 कैंसिल कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाएगा सर्कुलर लूप की वजह से ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r के बराबर। ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूं। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट of magnetic field induction at point O due to the current coil or due to the circular coil carrying current। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गया। ठीक है, इसको आप और भी एक फॉर्म दे सकते हो, वो फॉर्म क्या है देखो, इफ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ सर्कुलर कॉइल, सी कॉइल का मतलब समझ जाओगे, सर्कुलर कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N लिख देता हूँ, n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर सर्कुलर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होती, ठीक है, एक टर्न नहीं बहुत सारी टर्न्स होती लेट वी से, ठीक है, तो कितना होता, देन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर। ठीक है, तब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सेंटर के ऊपर कितना आना चाहिए था, देखो मैं इसी को थोड़ा मैंडेट करता हूँ इस फॉर्मूले को। क्या लिखा हुआ था ये फॉर्मूला, पहले म्यू नॉट आई लिखा हुआ था डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ था इनटू, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर लिखा हुआ था यहाँ पे, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं सर्कुलर कॉइल के अंदर तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा। अगर एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इतना आया था तो n की वजह से क्या हो जाएगा, इसका n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि ये बन जाएगा म्यू नोट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाई 2r, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द n टर्न्स की वजह से। ठीक है, इसको एक और फॉर्म दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखना एक आर से तो एक आर मैंने कैंसिल कर दिया पहले, क्लियर है, ओके, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज आई एज इट इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4 पाई मैंने एज इट इज रख लिया है यहाँ पे, 4 पाई आर एज इट इज रख लिया इनटू यहाँ मैंने बना दिया 2 पाई टाइम्स ऑफ n के बराबर। इस बात को समझना, 2 पाई का मतलब होता है कि 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब इफ द कॉइल हैज 1 टर्न ओनली देन द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल वुड बी 2 पाई। ठीक है, तो एंगल कितने का बनेगा, 2 पाई एंगल बनेगा। अगर उस सर्कुलर कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितने का एंगल बनेगा, तो हम बोलेंगे उस 2 पाई का कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो इस 2 पाई n को क्या बोलते हैं, दिस 2 पाई n इज कॉल्ड
एंगल सबटेंडेड एट द या बाय द कॉइल एट द सेंटर, बाय द कॉइल एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर के ऊपर कॉइल ने कितना एंगल सबटेंड किया है ये लिखते हैं। और कई बार बेसिक फॉर्मूलेज के अंदर इसी फॉर्मूले का हम लोग ये भी लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर एज इट इज, ठीक है। और इसको हम एंगल सबटेंडेड की फॉर्म में क्या लिख देंगे, अल्फा से हम लोग क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। तो ये अल्फा किससे क्या हो गया, इस 2 पाई एन को मैंने क्या लिख रखा है, अल्फा से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ये आ गई एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, 2 रूल बताए मैंने। फर्स्ट रूल, यहां सर्कुलर कॉइल के लिए ना पाम रूल थोड़ा सा कम एप्लीकेबल होता है, कम या मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा लगाना, आपको छोटे छोटे एरिया करंट एलिमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा कंप्लीट सर्कुलर लूप को, ठीक है। लेकिन आप अगर पाम रूल की जगह राइट एंड थंब रूल आप सर्कुलर लूप पे लगाते हो, द रिजल्ट्स विल बी मोर सिंपलर, ठीक है। रिजल्ट सिंपल आएंगे और इजीली रिजल्ट आ जाएंगे। देखो जैसे एक आपने 2 सर्कुलर कॉइल माननी है, एक सर्कुलर कॉइल ये मान ली, एक ये मान ली, क्लियर है, ठीक है। अगर एक सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कि इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द फिंगर विल बी कर्ल्ड इन क्लॉकवाइज, ठीक है। फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताएंगी, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर फिंगर्स मैंने क्लॉकवाइज टर्न कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड क्रॉस से दिखाई जाती है। अगर दूसरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इफ फिंगर्स आर कर्ल्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट मींस इफ करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट सर्कुलर लूप वुड बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड। इसका मतलब आप दिखाओगे एंड सर्कल डॉट दिखाओगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एज कंपेयर टू पाम रूल के कंपैरिजन में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक कंप्लीट सर्कुलर लूप है, एक कंप्लीट सर्कुलर लूप इज बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कुलर लूप है ना, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। समझ रहे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसे एक सर्कुलर लूप बनाता हूं, ठीक है, और उस सर्कुलर लूप के अंदर मान लेते हो सर्कुलर का फेस 1 है, ये FACE फेस 1, ठीक है, मतलब आप यहां से देख रहे हो, तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के अंदर अगर जिस साइड से आप देख रहे हो अगर उसमें आपको करंट नजर आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो उसी सर्कुलर कॉइल को अगर पीछे से मतलब उसका बैक फेस देखा जाएगा, ठीक है, फेस 2 देखा जाएगा, उसका मतलब बैक फेस लिख देता हूं यहां पे, उसका बैक फेस देखा जाएगा, ठीक है, तो वही करंट आपको कैसे दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। इसका मतलब एक सर्कुलर कॉइल के अंदर अगर फ्रंट वाले पोर्शन से आपको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आ रहा है तो बैक वाले पोर्शन से वही करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो एक तरफ से क्लॉकवाइज एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, इट सिंपली मींस एक तरफ से आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, एक तरफ से नजर आएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और रूल लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी सर्कुलर कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है देन दैट फेस ऑफ द सर्कुलर कॉइल विल बिहेव एज साउथ पोल, और अगर उसी कॉइल को पीछे से देखेंगे तो उसी कॉइल के अंदर करंट कैसे नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो पोल कैसे दिखाई देगा, नॉर्थ पोल। और आपको पता है अगर एक ही सर्कुलर कॉइल में साउथ पोल भी एक तरफ आ जाए और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल आ जाए तो आप साउथ और नॉर्थ पोल कंप्लीट हो गए, मतलब डाइपोल कंप्लीट हो गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कंप्लीट सर्कुलर लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब एक सर्कुलर लूप जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। अब देखो जब आप इसको देख रहे हो तो मान लेते मैं एक क्लास के अंदर टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, सामने क्लास बैठी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस अपनी उंगली को ऐसे घुमाता हूं, ठीक है, तो क्लास को नजर आएगा कि मैं अपनी उंगली को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, जबकि मेरे को नजर आ रहा है मैं इस जगह से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सर्कुलर लूप के दोनों फेस एक साउथ की तरह बिहेव करता है, एक नॉर्थ की तरह, तो हर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अपने आप में एक कंप्लीट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पे 3 रिजल्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये अभी आपको मैं स्पेशल केस कराऊंगा वहां पे याद रखना पड़ेगा, वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। सेकंड, जब भी कोई सिंपल सर्कुलर लूप का कोई एग्जांपल आ जाता है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। थर्ड, अगर कभी भी ये आ जाएगी व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है, इफ दैट सर्कुलर कॉइल सबटेंड एन एंगल ऑफ लेट वी से ये अल्फा एंगल 60 डिग्री के बराबर होता, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूले जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो 3 अलग अलग रिजल्ट्स निकाले हमने सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के। अब इसके स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, देखो। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार सर्कुलर कॉइल के लिए मैं डायरेक्शन दोबारा बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो अगर सर्कुलर कॉइल को प्लेन ऑफ बोर्ड में ड्रॉ किया गया है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the magnetic field at the center of the circular coil would be perpendicular to the board outward and which would be given by the right hand thumb rule, according to which if fingers are curled in anti-clockwise direction then the direction of magnetic field at the center of the circular coil would be given by the thumb, and then the thumb would be pointing, thumb is pointing perpendicular to the board outwards। क्लियर है? ओके। कुछ बुक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर लूप की वजह से ऐसे भी रिप्रेजेंट की जाती है कि इनिशियली तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में दिखाते हैं, उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे हम लोग कर्व्स की फॉर्म में दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ध्यान रखना है कि जितनी किसी भी सर्कुलर कॉइल का रेडियस बड़ा होगा, अगर वो करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म। कैसे मिलेगी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेंटर के ऊपर क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में होंगी ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम। 10th क्लास में पढ़ाया जाता था, ठीक है, कि सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है और जब जैसे हम लोग सेंटर से अवे जाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिक्रीज होता जाता है। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द स्पेशल केस, ठीक है। सो फर्स्ट स्पेशल केस क्या है आपके पास? यू नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। आपके पास क्या गिवन है? एक सर्कुलर आर्क गिवन है, ठीक है। ऐसे मैंने एक आर्क लगा दी, आर्क को नाम ले देते हैं लेट वी से ए बी। आपके पास एक सर्कुलर आर्क थी, ठीक है। उस ए बी सर्कुलर आर्क की वजह से कि, ठीक है, उसकी वजह से आपको उस सर्कुलर आर्क के सेंटर के ऊपर, मान लेते हैं उस सर्कुलर आर्क का सेंटर था ओ, तो इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करने के लिए लेट आर बी द रेडियस ऑफ द आर्क, ठीक है। उस आर्क का रेडियस मैंने सेंटर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट आर्क मैंने आर के बराबर ले लिया, या इसको हम लोग जनरली ये बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है? ठीक है, गिवन है आपके पास लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन, ठीक है। आर्क लेंथ यहां पे दे रखी है, एल से डिनोट कर रखी है हमने, ठीक है। एल इज द लेंथ ऑफ आर्क। लेट दिस आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा डिग्री एट द सेंटर ऑफ द आर्क। आर्क के सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले वाला रिजल्ट यूज करेंगे, कुछ रिजल्ट्स को हम लोग पहले नोट डाउन कर चुके हैं। तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है। सर्कुलर आर्क के सेंटर के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला है। कैसे निकालोगे आप लोग? तो हमने कहा था म्यू नोट डिवाइडेड आई, आई इज द करंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर आर्क, डिवाइडेड बाय 4 पाई हो गया। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, उसका स्क्वायर हो गया, और यहां आ जाएगा dl। ये फर्स्ट रिजल्ट मैंने यूज किया है, ठीक है। अब dl क्या है एक्चुअली में समझा जाए तो dl इज स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ दिस सर्कुलर आर्क, ठीक है। इस आर्क का, ठीक है, छोटा सा करंट एलिमेंट है ना, उसको आप IDL से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली हो क्या गया आपके पास? DL हो गया स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। आपने उस स्मॉल लेंथ को अगर इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा? देखो इंटीग्रेशन में म्यू नोट I डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वेयर एज इट इज,
ठीक है, इनटू dl था छोटी सी लेंथ उस आर्क की, अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो कंप्लीट लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपके पास, गिवन है कैपिटल आर के बराबर। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया होगा। उसके बाद म्यू नोट एज इट इज आई एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर है, तो मैं 4 पाई आर स्क्वायर को r इंटू आर लिख देता हूं, देखो ठीक है, एक आर मैंने यहां लिख दिया, एक आर में एल के डिवाइड में लिख देता हूं, ये लिख दिया, देखो मैंने। इससे क्या हुआ कि इससे आपके पास हो गया एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज द रेडियस ऑफ आर्क, और हमने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ रखा है एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क वुड बी इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू, ये हो गया एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क बाई द आर्क, आर्क ने सर्कुलर आर्क के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, तो वो हमने अल्फा मान रखा है, तो फर्स्ट रिजल्ट हो गया आपके पास अल्फा। ये रिजल्ट आपको कब यूज करना है, जब किसी आर्क की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, वहां ये रिजल्ट यूज करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आप लगाओगे बड़ा सा क्रॉस और सर्कल लगा दोगे, एंड सर्कल क्रॉस लगाया जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड हो जाएगी। क्लियर है, ओके। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट कंसिडर करते हैं। देखो नेक्स्ट स्पेशल केस में क्या गिवन है, इफ वी हैव 2 सर्कुलर लूप्स, ठीक है, आपके पास अगर 2 सर्कुलर लूप है, एक लूप ऐसे बना रखी है, क्लियर है, ओके, एंड अनदर लूप इज सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सर्कुलर लूप, ठीक है, तो दूसरी लूप आपने ऐसे बना रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लूप है, बोथ द लूप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेट फर्स्ट लूप कैसी है, देखो अगर मैं इसको समझाऊं तो ये लूप कैसे गिवन है, ऐसे गिवन है, एक लूप ऐसे गिवन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और एक इसके वर्टिकल है, तो वर्टिकल कैसे दिखाता हूं, ऐसे वर्टिकल है, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लूप्स, ठीक है। तो इन दोनों लूप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक को हॉरिजॉन्टल लूप मान लिया है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मैं हॉरिजॉन्टल लूप मान लेता हूं, इसको मैं फर्स्ट लूप मान लेता हूं, ये आपके पास हो गई सेकेंड लूप। फर्स्ट लूप का रेडियस और रेडियस तो दोनों का ही बराबर होगा, और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब इन दोनों का सेंटर एक है, सेंटर को मैंने ओ से डिनोट कर दिया, ठीक है। लेट द करंट फ्लोइंग इन द हॉरिजॉन्टल लूप इज आई, ठीक है, I1 बोल देता हूं या मैं, ठीक है, I1 करंट फ्लो कर रहा है उस हॉरिजॉन्टल लूप के अंदर, और I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कौन सा लूप, सेकेंड लूप से I2 करंट फ्लो कर रहा है। आपको बताना क्या है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक लूप्स, ठीक है, उन दोनों कॉन्सेंट्रिक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है, ठीक है। तो मैं इनको अलग अलग ट्रीट करता हूं, एक बार ध्यान देना। पहली सर्कल लूप ऐसे बनी हुई है, इस लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये लूप है ना प्लेन में रखी हुई है, मतलब ये लूप एक्चुअली में ऐसे रखी हुई है, देखो मैं इसको कंसिडर करके दिखाऊं तो आपको, ठीक है, दिस लूप इज प्लेस्ड इन दिस मैनर, ऐसे मैनर में रखी हुई है, ठीक है। इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं अपनी फिंगर्स को आपकी तरफ ये लूप को करके एक बार अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता हूं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और फिर पाम को सीधी कर देता हूं, क्योंकि पाम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पाम करते हुए उसके ऊपर रखता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसकी वजह से होगी आउटवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी B1 मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड लूप है वो ऐसे है वर्टिकल, उसके अंदर भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी इस डायरेक्शन के अंदर, इसको मैं B2 बोल देता हूं, ठीक है। इसको कैसे समझाऊं मैं, अब की बार पहले बार आपने हॉरिजॉन्टल लूप ऐसे लिया था, अब आपने वर्टिकल लूप ऐसे ले लिया, और इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, और इसको वर्टिकल करते ही ऐसे हो जाएगा, देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, मतलब राइट साइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो आपने राइट साइड ऑफ द बोर्ड दिखा रखी है, देखो, ठीक है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं, तो फर्स्ट लूप की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है B1, और सेकेंड लूप की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है B2, ठीक है। तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए आपके पास 2 वेक्टर है, B2 भी वेक्टर है, B1 भी वेक्टर है, और 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर द रूट। हालांकि आगे भी होता है ये फॉर्मूला होता है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 और फिर आएगा कोस थीटा, ठीक है,
लेकिन B1 और B2 के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 कितना बन जाएगा 0। तो ये फॉर्मूला यहां तक ही रह जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर तक, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट कई बार ये भी कह दिया जाता है कि इफ सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप्स। ठीक है, वैसे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B1 होगा कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B1 हो जाएगा आपके पास म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2R, मतलब सेकंड रिजल्ट इसमें यूज होगा। तो मैंने बताया था अगर एक सिंपल सर्कुलर लूप हो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है तो सेकंड फॉर्मूला आएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2R। अगर इन लूप्स के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो मल्टीप्लाइड बाई n और हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अगर एक ही टर्न दे रखी है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, हटा दो। ठीक है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इतनी होगी, पहली वाली में I1 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर ये बोल दिया जाए कि दोनों लूप्स के अंदर करंट, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द लूप इज सेम विच आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, I करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी सेम हो जाएगा। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को मैं B1 से डिनोट कर दूंगा, तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाएगा 2B1 स्क्वायर अंडर द रूट B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा अंडर द रूट 2B1 के बराबर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स विच आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B1 आया था आपके पास म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई 2R के बराबर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आया है BR लिख देता हूं उसको, ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने कहा कि जो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है उस पैरेललोग्राम में एक साइड B2 है एक साइड B1 था, अगर वो दोनों साइड, अगर करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप सेम हो गया तो दोनों साइड B1 बन जाएगी, तो उसके डायगोनली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगी, और अगर ये दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कितने डिग्री का, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड केस है, जब दो सर्कुलर कॉइल हो उनके अंदर लेट वी से n नंबर ऑफ टर्न्स हो। ठीक है, और वो दो सर्कुलर कॉइल एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली रखी हुई है सच दैट देयर सेंटर्स कोइंसाइड, इनका सेंटर क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू अनदर स्पेशल केस, देखो थर्ड स्पेशल केस है आपके पास, सर्कुलर कॉइल सबके पास दो ही है आपके पास, लेकिन वन ऑफ द सर्कुलर कॉइल हैविंग स्मॉलर रेडियाई एंड अनदर वन हैविंग लार्जर रेडियस। एक सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस बढ़ा दे रखा है। ठीक है, ये एक सर्कुलर कॉइल हो गई, और एक आपके पास लार्जर रेडियस की सर्कुलर कॉइल है ऐसे। ठीक है, ये लार्जर रेडियस की सर्कुलर कॉइल। ठीक है, लेट वी से लार्जर रेडियस वाली सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस आपने R2 बता रखा है, स्मॉलर रेडियस की सर्कुलर टर्न है वो आपने R1 से डिनोट कर रखी है, वो R1 हो गया, उसका रेडियस आपने R1 मान रखा है। क्लियर है, ओके। इनिशियली हम मान के चल रहे हैं लेट करंट फ्लोइंग थ्रू दीज बोथ सर्कुलर कॉइल इज I करंट I1, और इससे करंट फ्लो कर रहा है लेट वी से I2, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है दोनों से ही। ठीक है, तो अगर दोनों से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, ठीक है, दोनों कॉइल्स की वजह से सेंटर के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाएगा। देखो कितना आएगा, म्यू नॉट एज इट इज रहेगा, आई एज इट इज रहेगा, पहले वाले में करंट I1 है तो I1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई, ठीक है, फॉर्मूला ये लगेगा 2 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कुलर कॉइल R1 दे रखे तो आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में निकाल किस फॉर्मूले से रहा हूं, राइट एंड थंब रूल से। अगर इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है अंदर वाली कॉइल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड। अगर बाहर वाली कॉइल में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड। तो दोनों में सेम है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऐड हो जाएगा। दूसरी कॉइल, बाहर वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2R2 के बराबर। ठीक है, और दोनों की वजह से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड है, तो आप यहाँ पे दिखा दोगे एंड सर्कल डॉट लगा दोगे। इसका मतलब ये है हियर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड है ये। ओके, इन द सेकेंड केस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, लेट करंट इन द बोथ कॉइल्स इज अपोजिट। ठीक है, दोनों कॉइल्स के अंदर, दोनों सर्कुलर कॉइल में करंट अपोजिट ले लिया। इनर कॉइल का रेडियस R1 ही है, क्लियर है, आउटर कॉइल का रेडियस R2 ही है। इनर कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेट वी से I1 करंट,
ठीक है, और आउटर कॉइल के अंदर करंट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ करंट इज I2। इन दैट केस द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O, ठीक है, उस केस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल O वुड बी इक्वल टू, देखो छोटी कॉइल है ना, उसके देखो यहां देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डिपेंडिंग ऑन टू फैक्टर, फर्स्ट ऑन करंट एंड सेकंड ऑन रेडियस। क्लियर है, अगर जिस कॉइल का रेडियस छोटा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, अगर करंट हमने क्या ले रखा है, दोनों कॉइल्स के अंदर सेम ले रखा है, ठीक है। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द कॉइल्स इज टेकन एज सेम, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वुड बी डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल्स, ठीक है। तो उस केस के अंदर इनर वाली रेडियस का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R1, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो इस पहली वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा सेंटर में परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड। दूसरी वाली कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज करंट है, तो उसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। तो दोनों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। दूसरी वाली कॉइल में भी करंट उतना ही है, लेकिन दूसरी वाली कॉइल का रेडियस ज्यादा है। यहाँ पे आप लिखोगे वी आर कंसिडरिंग दैट द R1 रेडियस इज स्मॉलर देन R2, तभी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैंने अंदर वाली कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में से बाहर वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सब्ट्रैक्ट किया है, और डायरेक्शन भी अंदर वाली की आएगी, तो अंदर वाली की डायरेक्शन थी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड, ठीक है। ये आपको डिफाइन करना है, ये आपकी अलग अलग टर्म्स थी, ठीक है। PDF में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसकी एक एप्लीकेशन और बची है, नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करते हैं।